पाकिस्तान की जो डिजिटल मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको अच्छे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हैविंग दोज नंबर्स इन माइंड, द काइंड ऑफ e-commerce growth that brands are seeing right now is nothing compared to what they will see 5 to 10 years from now, by focusing on international market just because they are more profitable. And definitely I know they are more profitable. Assalamu alaikum. First of all, let me introduce you. Awais. Awais has started working with Data 360 as management trainee officer. So, actually, this broadcast I'm dedicating to this. Awais is always, asking me questions about the marketing strategy. कभी ये कोई ad देख के आ जाता है, ठीक है, मुझसे पूछता है कि इस ऐड पे कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई हुई है और क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ है। सो आज भी ये मुझे कह रहा था कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, सो आई थॉट आज की पॉडकास्ट में हम अवैस के क्वेश्चंस जो हैं उसको मैं आंसर करूँगा। तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हु हैव स्टार्टेड देयर योर कैरियर्स इन डिजिटल मार्केटिंग और हु हैव क्वेश्चंस अबाउट ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स एंड ऑल दैट, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन जिससे आंसर हो जाएंगे। सो अवैस, लेट्स गेट टू इट। थैंक यू जैन भाई कि आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे इस चीज़ की कि मैं आपसे अपनी जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड के अंदर बिजनेस से रिलेटेड और रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, यू हैव प्रोवाइडेड मी द अपॉर्चुनिटी टू आस्क दोस क्वेश्चंस एंड क्लैरिफाई दोस कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट from the beginning, like where did you started your career and what motivated you to drive into the digital marketing side and into the digital media world exactly? Okay, this is actually a very interesting story. I mean, not so interesting, but actually I'm a finance graduate. I have done BS honors in accounting and finance and chartered management accountant CIMA किया हुआ मैंने. So for like 10 first years of my career, I was working as financial analyst, business analyst, performance analyst, and into investment feasibilities and all that. So yes, nothing related to finance. But then I got to work in a brand, Limelight, where I was heading the supply chain planning and commercial analysis part. So there was an event कि Limelight में at the same time they were starting e-commerce. Or when they started e-commerce, they thought to give me a try because I was very successful in my previous projects as well. So I had zero e-commerce, zero digital marketing background when I started Limelight e-commerce project. But during that phase, जब मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया Limelight के लिए और जब मैंने इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मतलब ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. सो आई थॉट वट एवर आई वॉज डूइंग फॉर पास्ट 10 years, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ नाउ. सो एंड आई थिंक सक्सेस ऑल्सो वॉज अ वेरी ग्रेट फैक्टर, क्योंकि आई गॉट वेरी सक्सेसफुल इन Limelight ई-कॉमर्स का जो हमारा था स्ट्रक्चर. तो वो जो इनिशियल सक्सेस थी उसने मुझे वैलिडेशन दी कि आई कैन बी गुड एट दैट, बिकॉज a lot of other agencies and other service providers used to come and pitch me their services. So when I evaluated their performance against the performance I was able to generate at Limelight, so I thought I think I'm doing something different, something out of the ordinary. That is why I'm able to bring a lot of growth to a brand in a very short span of time. So I should maybe add more value to the industry as well. So that was the reason I actually quit Limelight and started Data 360. That's really great to know. अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि what do you suggest the newcomers who are entering into the market with their specific business, not asking related to any fashion industry or particularly some industry, but that can be any business who is trying to evolve themselves. तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि आज के दौर के अंदर उसको किन स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस करना चाहिए इन रिगार्ड्स टू डिजिटल मार्केटिंग और
किस तरीके से ग्रोथ की तरफ उनको जो है वो कदम अपने बढ़ाना चाहिए? अगर आप ई कॉमर्स स्पेसिफिक बात करते हैं ना, तो ई कॉमर्स को बी इट फैशन, बी इट इलेक्ट्रॉनिक्स, बी इट एनी कैटेगरी यू वांट टू बिल्ड एन ई कॉमर्स स्टोर, सो किसी भी बिज़नेस के लिए मैं हमेशा जो भी वैसे सजेशन लेता है मैं उसको ये कहता हूँ कि डू समथिंग यू नो विच यू अंडरस्टैंड। जस्ट बिकॉज आपने आपके दोस्त ने कोई फैशन स्टोर ऑनलाइन बनाया और वो कामयाब हो गया, इट डजंट मीन कि आप भी कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है, जो कि एक बिकॉज लाइक डूइंग बिजनेस ऑनलाइन इज एक्चुअली सिमिलर टू डूइंग बिजनेस ऑफलाइन, ओनली फ्यू डायनामिक्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो अगर एक ऑफलाइन अगर आप एक बिजनेस को जिन चीज़ों को इवेलुएट करते हैं, आपने अपने बिजनेस आइडिया को उन्हीं पैरामीटर्स पर इवेलुएट करना है, ठीक है। सेकेंडली टू सक्सीड, ठीक है, दैट business through digital marketing or through online businesses, I think you have to be really empathetic, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं जिस भी कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वो कौन से मीडिया पे है, वो कहाँ पर अटेंशन पे कर रहा है, क्या वो वाला कंज्यूमर अपना टाइम ज़्यादा टिकटॉक पे गुजारता है, या वो कंज्यूमर अपना टाइम स्नैपचैट पे गुजारता है, क्या वो कंज्यूमर अपना टाइम इंस्टाग्राम पे गुजारता है, ये सब जगह गुजारता है। जहाँ जहाँ वो कंज्यूमर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, आपको उसकी अटेंशन का कुछ हिस्सा चाहिए, ठीक है। वो जितना ज़्यादा हिस्सा आप ले पाएँ, चाहे वो ऑर्गेनिकली लें, ठीक है, चाहे वो अपनी ऑर्गेनिक कंटेंट से लें, चाहे वो आप अपने पेड कंटेंट से लें, बट आपको उसकी अटेंशन का पार्ट चाहिए, ठीक है। सो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इज द गेम ऑफ अटेंशन। द मोर अटेंशन यू कैन गेट, बेटर, आई मीन एवरीथिंग विल परफॉर्म। ओके, दैट्स परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, do this agency at X360 have a competitive strategy or a competitive advantage? What sort of competitive advantage do you think that X360 have over its competitors? और आप इसको किस तरीके से गेज करते हैं कि मार्केट के अंदर जितनी दूसरी डिजिटल एजेंसीज काम कर रही हैं, आप किस तरीके से उनको यानी कि कम्पीट कर सकते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? और कम्पीट तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। Yes, obviously, because they are giants. Like अगर हम Raymond की बात करें, किसी और डिजिटल एजेंसीज की बात करें, because there are a lot of segments which I think where we should be focusing on, like the international marketplace and other than the retail fashion stores, we should be So focusing I on. got your question now. Yes. So हमारा competitive advantage अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो हमारा competitive advantage ये है कि we have built our agency around performance marketing and around performance actually, ठीक है। So that was a huge disconnect in the industry before that, कि there were good content creators, there were good content generators, and there were agencies who were generating good content, and but the connect between brand value कि ब्रांड को असल में जो ब्रांड के ऑब्जेक्टिव्स थे वो मीट नहीं हो पा रहे थे। सो इंडस्ट्री के यानी कि या एजेंसी के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे, ब्रांड्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे। तो क्योंकि मैं खुद एक ब्रांड में 3-4 साल एक सीनियर पोजीशन पर गुजार के आया था, तो मैं ब्रांड की साइड को बहुत अच्छे तरीके से समझता था, जिसकी वजह से मेरे लिए एक ये समझना बहुत आसान था कि एक ब्रांड को एजेंसी से चाहिए क्या। एक्चुअली ब्रांड एजेंसी को कुछ नज़र से देख रहा होता है। सो आई ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो आई मुझे ब्रांड्स की प्रॉब्लम्स पता थी और मैंने उनको सॉल्व करने की कोशिश की। आई थिंक दैट वाज लाइक इन अ नटशेल द रीज़न, ठीक है, वी गॉट अल्हम्दुलिल्लाह सो मच सक्सेस रियली क्विकली। दूसरी आपने जो डेवलपमेंट की बात की, आई अंडरस्टैंड दैट कि देयर इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पोटेंशियल इंटरनेशनली, and the kind of work we are doing locally, we can easily replicate that, and we can easily replicate those solutions internationally as well, and it's actually more profitable as well. Yeah. But sometimes financial success is not everything, because the feeling of changing the industry, the feeling of
changing something and correcting something that was being done wrongly for a longer period of times, that feeling is priceless. I get that feeling while working for Pakistani market, because this industry is it has still a lot of growth potential. Okay? So while understanding that we can grow internationally, and we, there are 10 more opportunities that can lead to financial success. Still I believe कि पाकिस्तान की जो इस टाइम ई कॉमर्स मार्केट है, पाकिस्तान की डिजिटल मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको अच्छे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और वो इसलिए ज़रूरत है कि because the organized buying sector in Pakistan is only maybe 15-20% of the total buying, और उस organized buying में से भी सिर्फ 5-10% ई कॉमर्स में कन्वर्ट करते हैं. So having those numbers in mind, the kind of e-commerce growth that brands are seeing right now is nothing compared to what they will see 5 to 10 years from now. So this industry is also getting huge. So I don't want to lose grasp of this industry as well, by focusing on international market just because they are more profitable. And definitely I know they are more profitable. अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि हर बिज़नेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, मिशन विजन होता है, और साथ में मिशन स्टेटमेंट होती है. सो व्हाट इज़ द मिशन स्टेटमेंट और द विजन ऑफ ADX 360 बेसिकली? I always wondered about that. While you were asking this question, I was looking at why I'm not able to communicate to that, because we have a mission, and I think every employee should know about it. So definitely I'll be circulating it to every employee after that. But ADX 360 की जो हमने मिशन स्टेटमेंट बनाई है, it is that we want to become a digital marketing solution provider for every business, because I believe every business, चाहे वो e-commerce पे है, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो एक रिटेलर है, चाहे वो एक होलसेलर है, या चाहे वो एक इंटरनेशनल ट्रेडर है, आज नहीं तो कल उसको ये ज़रूरत महसूस हो जाएगी कि उनको डिजिटल या इंटरनेट की वर्ल्ड में अपनी प्रेजेंस रखना बहुत ज़रूरी है. मार्केटिंग करना भी ज़रूरी है, और प्रोफाइलिंग और प्रेजेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है. सो इट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड. सो माई मिशन इज़ टू प्रोवाइड दो सॉल्यूशंस, और जो एक डिस्कनेक्ट है between the marketing world and the brand world, especially on the digital front, इसको ख़त्म करना. क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को एक्चुअली फोकस करना चाहिए ब्रांड्स के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं. हर ब्रांड का अपना ऑब्जेक्टिव होगा, किसी का सेल बढ़ाना, किसी का प्रोफाइल बनाना, किसी का ब्रांडिंग बढ़ाना, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करेगी उनको वो अचीव करने में. सो आवर मिशन इज़ टू ब्रिज दैट गैप एक्चुअली. Okay, my another question was regarding the employees of a digital marketing agency. That don't you think that it would be good that if we have some sort of policy कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से जो है वो गेज करें, और गेज नहीं मैं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि आप उनको इक्विप करें डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के थ्रू. लाइक देयर आर गूगल सर्टिफिकेशंस, लाइक देयर आर फेसबुक सर्टिफिकेशन फॉर पर्टिकुलर किसी भी स्किल के लिए, किसी भी स्किल सेट के लिए, चाहे वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, चाहे गूगल एड्स हो. तो हम जो है वो अपनी स्किल को मज़ीद जो है वो उसको पॉलिश कर सकते हैं. और अगर हमें कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है जो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो इस तरह जो है हमारे स्किल्स भी साथ साथ हमारे अलाइन हो जाएंगे हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ. एंड इन दिस वे ऑल द एम्प्लॉयज़ वुड बी लाइक वेल इक्विप्ड, well knowledgeable, and they will be like evolving in their professional presence. Wes, the best thing a company can do for their employees, I agree with the training parts, with the certification part, with the blueprint certification and the Google AdWords. I agree with all that, ठीक है? But that is not enough, ठीक है? For example, right now you are working in SEO department as an MTO, ठीक है? तो जस्ट बिकॉज मैं आपको गूगल के सर्टिफिकेशंस करा दूंगा, किसी डिजिटल मार्केटिंग या ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन करा दूंगा कंपनी से, यू वोंट लर्न दैट. आई कैन डू यू अ बेटर फेवर बाय पुटिंग यू इन दैट डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड मेकिंग यू लर्न फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग स्टफ, ठीक है. सो आई बिलीव इन दैट मोर,
एंड मेरी अपनी कंपनी में आई हैव डन लाइक इन द पास्ट 1.5 year many people who started in some other department and eventually I got to realize कि इन लोगों का टैलेंट इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से नहीं दूसरे डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, सो आई एक्चुअली मूव देयर जॉब्स. ठीक है. सो क्रॉस डिपार्टमेंट ट्रेनिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट on work rather than trainings. It doesn't mean that trainings are not good or they should be discouraged, but I think they are not enough. But yes, definitely there should be training programs, but internal training programs are better, ठीक है, than the certifications. Than the traditional certifications. ठीक है. So as you see last week, I think me and Umar conducted a short training discussion on some campaign objectives. Yes. You know, that kind of training you will never get from any certification. Yes. I think that have answered all my questions for now. And I will be definitely in touch with you whenever I feel that I have some more definitely, questions. bro. We work in the same building, so you can ask me anytime. Okay. That's good. So that's what it. I think I hope some of your questions are also answered. But if you guys have more questions, you can leave it in the comments, and I'll definitely make sure whenever I have time I answer that. Thank you very much.